وہ سب کچھ واشگاف ہو گیا۔ آج اس نے ایک نیا ڈرامہ رچایا۔ ظاہر ہے جب پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے، ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک ایک جھوٹ پھوٹتا رہا۔ گولی ایک چلی ہے یا یہ کہ برس مارا گیا ہے، گولی ایک لگی ہے، دو لگی ہیں، تین لگی ہیں، چار لگی ہیں، ایک ٹانگ میں لگی ہیں، دو ٹانگوں میں لگی ہیں، گولی لگی ہے، گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں۔ یہ گولیوں کے ٹکڑے جو ہے وہ مجھے نہیں، بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے، گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا جی۔ کہاں سے ٹکڑے آ گئے اتنے زیادہ؟ میں نے ایسے ان کے لوگوں کو دیکھا کہ پتہ نہیں گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں، لیکن اتنا لگتا ہے کہ ان کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن نیچے قمیص وہ ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی۔ تو جس طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹا خون لگایا تھا، یہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈی میں بھی شارگ ہوتی ہے۔ کیا ڈرامے ہیں ڈاکٹروں کے، اپنے بیانات پہ تضاد ہیں۔ کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں، یا تو 5-6 دنوں میں مشکل سے لاہور سے گجرانوالے پہنچتا ہے، اور یا جب گولی لگتی ہے تو اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ 1 گھنٹے میں لاہور، قریبی ہسپتال بھی نہیں۔ اتنے بڑے حادثہ جس کی وجہ سے آسمان سر پہ اٹھایا گیا۔ پھر ہڈی کا علاج کینسر اسپتال میں، پھر اس کے ڈاکٹر کا رپورٹ، اور جو باہر سے ٹیم آئی ہے اس کی رپورٹ، اور واقعہ پنجاب کی سرزمین پہ، سیکورٹی پنجاب گورنمنٹ کی، بندہ پکڑا گیا تو پنجاب پولیس نے پکڑا، لے گئے تو پنجاب کے تھانے میں، تفتیش ہوئی تو پنجاب کی پولیس نے کی، اور بغیر تحقیق کے ملبہ ڈال دیا کہ جی وزیر اعظم پر پرچہ کاٹا جائے، رانا ثناء اللہ پہ پرچہ کاٹا جائے، ISI کی DGC پہ پرچہ کاٹا جائے۔ کیا مطلب؟ کس طرح آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ اس طرح تو عام دیہاتوں میں کوئی شاید، جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دعوے داریاں فوراً کر دیتے ہیں، اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ایسی گفتگو جو کوئی عام شہری بھی شاید اس کو قبول نہ کرے، یہ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم جو رہ چکا ہے اور اس منصب کو استعمال کر رہا ہے، اس قسم کی گفتگو وہ کرے۔ کچھ تو سمجھنے کی ضرورت ہے معاملے کو۔ اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں ہم لوگ، ہمارا عام شہری بالکل غیر سنجیدہ ہو گیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے سب لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید۔ کوئی اداکار بھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی، اور اس کو سچ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی دوڑ کے چلتا ہے، کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبا پیوند ہے۔ یہ کون سی طریقہ ہے؟ ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر ڈالا جاتا ہے، زخموں پر پٹی باندھی جاتی ہے، جیسے زخمی کے اوپر پتہ نہیں یہ کہ ایک ٹانگ ہے 2 ٹانگیں ہیں،
اس طرح کا ڈرامہ شاید دنیا میں کوئی مچا سکے. اور وہ پشتو میں ہے کہ وہ ہم دکم جائے اور ڈب دکم جائے باران پر پران کی جائے کہ وہ شو اخرے دپان کی جائے اور. تو اس قسم کے کہاوتوں کا وہ مصداق بن رہا ہے. واقعہ ادھر ہو گیا ہے، ملبہ وفاق پہ ڈال دیا گیا. کیا کہتا ہے مارتا تمہیں میں کسی اور جگہ پہ ہوں، آواز کہیں اور سے نکل رہی ہے. تو اس قسم کی ڈرامے بازیاں سمجھ میں نہیں آ رہی. ساری دنیا کو چور چور کہنا، کوئی وقار کی زبان بھی سمجھو، کوئی وقار کی زبان بھی سیکھو، اور خود سب سے بڑا چور پھر نکل آتا ہے. اب بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تو اس پر جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے. پہلے اس پر جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹا خط کیوں لہرایا تھا. پہلے اس پر جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے ایک ریاستی راز کو کیوں اس طرح تشت البام کیا، اس کو جھوٹ بنا کے، غلط معنی پہنا کے، غلط پیغام سے اس کو وابستہ کر کے کیوں لہرایا اسے. کس کس بات کو رویا جائے، کس کس جھوٹ کو رویا جائے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے. لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے، ٹھس ہو چکا ہے، اب دوبارہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. اور شاید ڈرامے کے بعد کچھ ہمدردیاں، ڈرامے سے پہلے شاید کچھ ہمدردیاں ہمیں بھی ہو جاتی کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے، تھوڑا اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، تم نے وہ مواقع بھی گنوا دیے ہیں. اب حکیم ثناء اللہ بھی اس سے کہیں ذرا طاقتور نسخہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آ سکیں. اور میں اپنی حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں دکھانی، ڈٹ جانا ہے، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکے گی. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اور یہ کوئی چیز اب نہیں رہے. انشاءاللہ العزیز پوری طرح مقابلہ ہوگا، اور کوئی رعایت ان کو اب نہیں دی جائے گی. اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے، تمہارے تلوے اس زمین کو برداشت کرنے کے قابل اب نہیں رہے ہیں. بہت مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کو جو ہے اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا، ان کی حکومت میں آپ یہاں پر آئے تھے، آپ نے لانگ مارچ کیا تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے. اب وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے. تو کتنی اس میں جو ہے کرتے ہیں؟ دونوں بڑی واضح چیزیں. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، جہاں پر انتظامیہ نے ہمیں کہا ہم وہیں رکے. کراچی سے لے کر، کوئٹہ سے لے کر، چترال سے لے کر، گلگت سے لے کر، گوادر سے لے کر، جہاں جہاں سے قافلے آئے، راستے میں ایک مسافر پاکستان کا بتا دے کہ اس کے سفر میں اس کو کوئی خلش ہوئی ہو، کوئی بس رکی ہو، کوئی گملہ ٹوٹا ہو، کوئی پتا گرا ہو. اور یہاں پر ہم آئے، 15 دن رہے، جس نظم و ضبط کے ساتھ پولیس کی یہاں پر جو ڈیوٹیاں تھیں وہ ریلیکس ہو گئے. وہ ہمارے مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، مل کر نمازیں پڑھتے تھے، اور بالکل شائستگی کے ساتھ معاملہ ہوا، اور ہم چلے گئے. اس کے بعد یہ آئے، کورٹ نے کہا کہ ان کو آنے دو. حالانکہ ان کے عزائم کا جب حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، انٹیلیجنس رپورٹیں آ جاتی ہیں، تو حکومتیں انٹیلیجنس رپورٹوں پر پھر پالیسی اور حکمت عملی بناتی ہے. سو ہم نے حکمت عملی بنائی، لیکن کورٹ نے کہا کہ نہیں آنے دو. کورٹ کے آنے پر آئے، جو جگہ ان کے لیے مختص کی گئی، کیا وہ وہاں رکے؟
क्या वो आगे नहीं बढ़े? क्या वो डी चौक पे नहीं आए? क्या ब्लू एरिया पे आग नहीं लगाई? ये होता है फर्क कि आप मुझे कह सकते हैं तो मेरी पोजीशन ये थी, जब हम इनको रोक रहे हैं तो उनकी पोजीशन ये है। और जहां तक है इदारों की बात, बाबा बात है साफ, हमारी शिकायत इदारों से थी कि आप उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। उसकी शिकायत यह है कि तुम न्यूट्रल क्यों हो, तुम मेरा साथ दो। फर्क समझो जरा इस बात को जी। अब ये कहता है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी से बने। अगर इस तरह मर्जियों से बनना है तो फिर उस पार्टी का अपना आर्मी चीफ होगा, फिर मुस्लिम लीग का अपना आर्मी चीफ होगा, फिर हमारी पार्टी का अपना आर्मी चीफ होगा, फिर ये तो अजीब फौज होगी फिर। तो इस किस्म के बेतुके किस्म के आइन से मावरा बातें करना, मुतालबात करना, ये उसको अपना खौफ नजर आता है। मौलाना साहब ये फरमाएं कि गोली मारने वाली सियासत है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं और इसी गोली मारने वाली सियासत में आप अपने आप को महफूज समझते हैं? देखिए, मुझ पर 3 खुदकुश हमले हुए, अकरम खान दुरानी पे हुए, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे हुए, मौलाना हसन जान हमारे पार्लियामेंटेरियन थे उनको शहीद किया गया, मौलाना मेराजुद्दीन हमारे पार्लियामेंट को शहीद किया गया, मौलाना नूर मोहम्मद सवाना के उनको शहीद किया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। और उलमाए किराम, शुयूख हदीस, कहाँ कहाँ पर उनकी शहादतें हुई। इस वक्त 1 साल के अंदर बाजवड़ के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम का अगर एक साथी जो 1 महीना पहले बम धमाके में गाड़ी उड़ गई और वो बच गया, अगर वो भी शहीद हो जाता तो ऐसा तरह होता। 16 हमारे नौजवान उलमाए किराम शहीद हुए हैं। हज के दिनों में हम अभी हज पे थे, मीरली में हमारे 3 ज़ुआमा शहीद हो गए। एक हमारे सूबाई असेंबली का कैंडिडेट, एक हमारा नौ मुंतखब इलाके का चेयरमैन और एक हमारा तहसील सेक्रेटरी जनरल शहीद हो गए। और दूसरे इलाकों में यही सूरत हाल है। तो इसके दौर में तो हमारे साथ वो कुछ हुआ और अभी तक वो सिलसिले चल रहे हैं। हम यकीनन एक बड़ी मुश्किल में हैं। ये लोग पहले क्यों नहीं थे और जब हुकूमत तब्दील हो रही थी तो क्यों पाकिस्तान में आ गए और एकदम वो सूरत हाल और उससे बढ़कर ख़तरनाक सूरत हाल क्यों बन गई है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, जो भी पाकिस्तान का शहरी है वो पुरअमन ज़िंदगी गुजारे, इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजारे, आइन और कानून के ताबे ज़िंदगी गुजारे। कुछ गलतियां हैं जो रियासती सतह पर भी होती हैं, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसका इजाला कैसे किया जाए वो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन सूरत हाल यह है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अमन व अमान के लोग हैं। आप मुझ पे बता दें कि जमीयत उलमाए इस्लाम की किसी एक कारकुन के हाथों पाकिस्तान का सियासी जब मुखालिफ नहीं कोई शहरी अब तक मुतासर हुआ। मौलाना साहब ये फरमाएं कि आप इसी जगह पे मौजूद थे एक लम्हे के लिए। मौलाना साहब, इसी जगह पे जब मरियम नवाज साहबा का दरवाजा तोड़ा गया था कराची में और आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सेम उससे भी बढ़ के जो है वो आजम सवाती के साथ हुआ है। उसकी वीडियो आ गई और ज़ाहिर है जहाँ पे वो मौजूद थे उन्होंने खुद उसकी तस्दीक कर दी कि ये जगह उसी वही है जो वीडियो है। क्या इसकी भी फुल कोर्ट से तहकीकात नहीं होनी चाहिए? कब तक इस तरह ब्लैकमेल किया जाएगा सियासतदानों को? मैं एक गुजारिश करूँ आपसे, ऐसे वाक़यात की मैं 1000 दफ़ा मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं इस पर मज़ीद तबसरा नहीं कर सकता। आज़म सवाती को अपनी हया कितनी अजीज़ है या नहीं, लेकिन मुझे उसकी हया अजीज़ है। मौलाना साहब ये बता दें कि कुछ टाइम पहले आपने एक इस्तिलाह जो है वो मुतारिफ कराई थी निकेत अब्बा, तो निकेत अब्बा का रुख अब आपकी तरफ है कि मैंने इसका जवाब दे दिया। मौलाना साहब अगर उसने अगर अब्बे ने अपनी मर्जी से बकाई में होश व हवास बरज़ा व रग़बत अपने निक्के को आग कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार उसको। अच्छा मौलाना साहब इधर जी फरमाएं। जी हाँ फरमाएं। ये जो अभी मामला था आजम सवाती वाला, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वजाहत आई है उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है नाजिज कोर्टा में वहाँ पे आजम सवाती कभी रही नहीं। एक तो ये स्टेटमेंट अभी आई है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत आई है। दूसरी बात ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने ड्रामा किया या कुछ किया, लेकिन उनकी मैशत को नुकसान जरूर हुआ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इलेक्शन की तरफ भी 8 से 10 माह के बाद जाएंगे, तो मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा? अगर खान को एक साइड पे ये हुकूमत में था तब भी उसका एजेंडा मुल्क की मईशत को तबाह करना था।
ये हुकूमत से निकल गया तब भी उसका एजेंडा जो है वो मुल्क की तमीशत को तबाह करने का है। ये जो कुछ कर रहा है अपने नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी डिमांड है कि वहाँ पर गवर्नर लगाया जाए और अभी तक गवर्नर नहीं है वहाँ पर। गवर्नर ना लगने की वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? एक जरा सब कि फरियाद के दिन थोड़े। सुनने में ये आ रहा है कि जहाँ पर वो जलसों में खड़े होकर बात करते हैं और निशाना बनाते हैं तनकीद का, वहीं पर पसे पर्दा यानी कि राब्ते किए जा रहे हैं। तो किस हद तक आपसे कोई बात हुई वज़ीर आज़म की या साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी की कि ये राब्ते किए जा रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि कोई सेफ सेविंग दी जाए? मुझे ज़रदारी क्यों बताए, मुझे शहबाज शरीफ क्यों बताए? जिनसे वो राब्ते कर रहे हैं वो खुद बता रहे हैं आपको, उसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है? एक मेजर जनरल पे इल्जामात लग रहे हैं और आज़म सवाती भी उनका जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान भी उनका जिक्र कर रहे हैं। आपके दौर में पीडीएम की सारी क़यादत उस वक्त आईएसआई चीफ पर इल्जाम लगाती रही और फैज अमीन का तबादला भी पीडीएम के प्रेशर के बाद किया गया। आप क्या कहेंगे कि इस तरह के वाक़यात आपने तो सही हैं? आप देखिए, मैं गुजारिश करूं, मैं बड़ी वजाहत के साथ करना चाहता हूं। हमारा एक मुल्क है, मैं कोई इंडिया की फ़ौज की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पाकिस्तान की फ़ौज की बात कर रहा हूँ। उसका मेरे साथ रिश्ता है, वो मेरी फ़ौज है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, वो मेरी फ़ौज है। मैं गिला शिकवा कर सकता हूँ, किसी भी जनरल से मैं एक शिकवा कर सकता हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाना, उसकी किरदार कुशी करना, उसको गाली देना, ये तो कोई ऐसी हमारी सियासत का हिस्सा नहीं। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ये जो भी एपिसोड हुआ है, इस पे जो इंडिया में जो इंडियन मीडिया को जिस तरह जो खुशियां थी, जो उछाला जा रहा था, उसको अभी आपने कुछ बताया भी है। मजीद कैसे मतलब पाकिस्तान आर्मी से खुश होते हैं, दूसरा आईएसआई पे खुश हुए वो कि डीजीसी आईएसआई को इस तरह से रगेदा गया, और दूसरा ये बता दें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तदा की है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सुना है कि अदाकार बड़े टॉप दर्जे के अदाकार हैं, वो अपने अदाकारों की एक्टिंग से इतने शायद इंजॉय नहीं किया होगा उन्होंने जितना कि आज हमारे इस एक्टर की एक्टिंग से उसने इंजॉय किया। ये है हिंदुस्तान की पोजीशन। इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट जो है इंडिया के लोगों की और उनके इदारों के और नहीं हो सकती जो इस पर उनकी हुई है। तो जहाँ तक है शहबाज शरीफ साहब की बात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब वो वापस आएंगे तो इस पर गुफ्तगू होगी, चूँकि मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, वो अभी आज मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो जो ही सूरत हाल है। लेकिन सवाल यह है बुनियादी कि अरशद शरीफ का वाक़ है, अरशद शरीफ के वाक़े में बुनियाद ये रखी गई थी कि हाँ हमने मुल्क से भेजा है, लेकिन एक थ्रेट लेटर की बुनियाद पर भेजा है। हमें बताया जाए थ्रेट लेटर किधर है, एक ही कॉपी उसकी है और वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है। भला एक इदारा अगर थ्रेट लेटर जारी करता है तो वो उसी के पास रहता है, वो तो तमाम इदारों के छोटे छोटे अफसरान को लोकल लेवल तक पहुंच जाता है ताकि वहाँ पर वो दहशतगर्दों के पीछा करेगी। लेकिन यहाँ कोई कॉपी किसी के पास नहीं है, लिहाजा अरशद शरीफ के हवाले से अगर तहकीकाती कमीशन बनता है तो अभी से हम बता देना चाहते हैं कि सूबे के चीफ मिनिस्टर को और उसके फेडरल वज़रा जो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और बुनियादी बात यह है कि हम अगर कुछ बनाएंगे तो फिर इब्तिदा से बनाएंगे। तुमने ख़त क्यों लहराया, मुल्क के राज को क्यों फाश किया, झूठ क्यों बोला, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात हमारे क्यों इस हद तक पहुँचाए कि कोई हम पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि सब चीज़ की तहक़ीक़ होनी चाहिए, और तहक़ीक़ होगी तो फंस जाओगे। फिर जिस तरह आप फंसे हुए हो, बंद गली में जा चुके हो, तुम्हारे लिए अब निकलने का रास्ता नहीं है। और अगर ये आज के ज़माने की नए दौर की मीडिया न होती तो फिर आपकी तो आवाज़ ही ख़त्म हो चुकी होती। झूठ का सहारा लेकर तुम अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है, हमारे नज़दीक उनकी सियासत मर चुकी है, आखिरी तड़प रहा है और इसकी अब सियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सर अरशद शरीफ पे 16 एफआईआर भी काटी गई थी सर, 16 एफआईआर जो से काटी गई जिसकी वजह बनी उनको यहाँ से जाने की। नहीं, वो जो एफआईआर काटी जाती है सहाफ़ियों के खिलाफ, उसकी आप मज़म्मत करेंगे? वो सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा एफआईआर, सबसे ज़्यादा तशद्दुद, सहाफ़ियों पर सबसे, मीडिया पर सबसे ज़्यादा पाबंदी इसके दौर में लगी है, इसी के दौर में लगी है। सर मैं एक बड़ी बात पर एक सवाल करने की कोशिश कर रहा था। आपने बात की थी आर्मी चीफ की तकरीरी के लिए अगर पीटीआई को मनाए तो एक उनका होना चाहिए या उनका
सर आर्मी चीफ तो पाक आर्मी से ही आना है, तो उसके लिए बैठकर क्यों नहीं उसका मसले का हल तलाश किया जाता? हजरत मिलकर बैठ करने का मतलब यह है कि आइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे मुल्क में। वज़ीर आज़म ने इसका फैसला करना है, आइन के मुताबिक करना है, मेरिट पे करना है और बस खत्म हो गई बात। जिसका सवाबदीद है उसको हमें वो इख्तियार देना चाहिए। जब ये किसी को मुकर्रर करता था या एक्सटेंशन दे रहा था तो किसी से पूछा था उसने? मौलाना साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हम इस्लामाबाद में नहीं होने देंगे। आप इंतशार की बात करते हैं, एहतजाज तो उनका जमहूरी हक है। अगर आप इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने देंगे तो हुकूमत खुद नहीं इंतजार चलाएगी। देखिए उन्होंने असलहे की बात की है या नहीं की, खून खराबी की बात की है या नहीं की। उनके वजीरों के बयानात, उनके सूबाई वजीर का हाथ असलहा लहरा कर इस्लामाबाद जाना, तो अगर इस किस्म की बातें वो करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ असलहा लाने की बातें आएंगी और बाकायदा मीडिया में ख़ुद वो कहेंगे कि हम आ रहे हैं असलों के साथ, और फिर उनका अपना बंदा एक दिन पहले कर रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, यहाँ जनाजे उठेंगे, यहाँ लाशें उठेंगी, क्या इस्लामाबाद को हम इस चीज़ का तमाशा बनाएं? और पहले साबित हो चुका है कि ये आए और डी चौक पर उन्होंने पूरे इलाके को आग लगाई हुई थी। तो इस किस्म की जो जुनूनियत उसने अपने माहौल में पैदा की हुई है, इंतहा पसंदाना रविश, इल्ज़ाम तो उलमा और मजहबी लोगों पे लगाया जा रहा है। तो ये जो कह रहा है कि अल्लाह मेरी उस तरह तरबियत कर रहा है जिस तरह की नबी की तरबियत करता था, तो अब तो मेरे ख्याल में नबी बन चुका होगा। तरबियत करते करते मेरे ख्याल में नाउज़ुबिल्लाह अब तो उसको दावा कर लेना चाहिए कि अब मैं नबूवत के मकाम पर पहुँच चुका हूँ। तो इस किस्म की बोंगियाँ मारना, इस किस्म की खिलाफ शरीयत गुफ्तगू करना, और फिर जिस तरीके से उनके लोग, उनकी जो लॉन्ग मार्च में शरीक ख़वातीन और नौजवान जिस अंदाज से पेश हो रहे हैं, उस पर कहीं कोई रियासत मदीना का नक्श नज़र आता है, कोई शरीयत मुतहरा का नक्श नज़र आता है, कोई दीन का और मजहबी टच लगाओ, किसी का टच है, हर चीज़ को टच। अब उन्होंने जनाब दहशतगर्दी का टच लगा दिया अपनी तहरीक को। तो इस किस्म की चीज़ों को इस्लामाबाद में आने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क के निज़ाम को जाम कर दिया जाए, मुल्क का निज़ाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलता रहेगा। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मुफाहमती सियासत की कितनी ज़रूरत है, और बतौर पीडीएम सरबराह आप अपना रोल अदा करने के लिए उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। हम न मुज़ाकरात का इनकार करते हैं, न मुफाहमत का इनकार करते हैं, लेकिन मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। समझ में आता है कि हाँ इससे बात की जाए तो कोई माकूल बात करेगा। तो जहाँ पब्लिक के सामने आज तक उसकी कोई माकूल बात हमने नहीं सुनी, न उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, सिवाय तखरीब के कि जब हुकूमत में होता है तब भी तखरीब, जब हुकूमत से बाहर आता है तब भी तखरीब। तो फिर तखरीब को मिट जाना चाहिए, तखरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। मौलाना साहब बताइएगा कि नवंबर में ही धरने होते हैं, जलसे होते हैं, मुजाहरे होते हैं, ये नवंबर के जो जलसे हैं, ये जो धरने हैं, ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल क्यों नहीं होता? आज तो मखलूत हुकूमत है, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, कम से कम इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने, इस पे कभी नहीं सोचा सियासी जमातों ने? मौसम अच्छा होता है। जब आपने कहना दिया था तो आपके कंटेनर से ऐलान हुआ कि हम 2 दिन बाद डी चौक जाएंगे, अभी तो आप धरने से बाहर आए, बिल्कुल भी तो उन ताकतों के नाम देखिए धरना खत्म करने नहीं, देखिए नीचे से नारे लगते रहते नौजवानों के, लेकिन जो पॉलिसी थी और कंटेनर की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक हम चले हैं। बहुत YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।